Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School, Unit 3rd, and today I am going to teach a chapter from class 8 of Political Science, that is the Indian Constitution. Class 8 Political Science SST Chapter The Indian Constitution. So, students, before starting this chapter, let me tell you some interesting fact about the Constitution of India. The father of the Constitution of India was Dr. Bhimrao Ambedkar, and the Constitution was originally written in Hindi and English language. The English version of Indian Constitution has approximately 1,17,369 words. Our Indian Constitution is the longest constitution in the world. Our constitution wasn't typed or print. Instead of it, it was handwritten. It was written by Prem Behari Narayan Raizada. Each page of our constitution was decorated by the artist of Shanti Niketan, as you can see a picture on the screen. The original copy of our Constitution of India in special case are stored in the Library of the Parliament of India. December 1946, the Constitution Assembly was met at first time. It took nearly 3 years to write down our Constitution. November 26, 1949, the final draft of the Constitution was ready. 24 January 1950, signing of the Constitution. You can see the picture on the screen. 26 Jan 1950, the Constitution was legally enforced. All of you know about it. 26 Jan 1950, the national emblem of India was adopted. Now let us start our chapter. The Indian Constitution. Introduction. We have looked at the Indian Constitution in classes 6th and 7th in our social and political life textbooks. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of the democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book chapter. So, Indian Constitution. स्टूडेंट्स आपने क्लास सिक्स और सेवन्थ की बुक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है ना? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, है ना? तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, इन्हीं सारे क्वेश्चंस और इन सारे इश्यूज़ के बारे में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे की फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, और सभी फीचर्स को हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी में वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट टॉपिक पे। व्हाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब एक कंट्री में क्या आवश्यकता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की। सो लेट्स जस्ट सी द टेक्स्ट. Today, most of the countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that forms a basic of the kind of country that we as citizens aspire to live in or put away. A constitution tells us what a fundamental nature of the society is.
A country is usually made up of the different communities of people who share certain beliefs or may not necessarily agrees on all issues. ठीक है, सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता है यहाँ पर? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले ये आवश्यक, देखिए सभी जो कंट्रीज़ हैं, हम सभी पहले कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। देखिए पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, है ना, सभी जो कंट्रीज़ हैं, है ना, सभी के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। ठीक है, ठीक है, तो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अपना एक संविधान होता है ना। अभी तक तो मैं कंट्री की बात कर रहा था, अब डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करूँगा। तो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अपना संविधान है, ठीक है, लेकिन सभी कंट्री जिनके पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक नहीं है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी कंट्री जिनके पास अपना संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ अलग अलग पर्पस है ना, क्यों हमने क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एज हम जो सिटीज़न हैं अपने कंट्री के, सिटीज़न मतलब जो हम अपनी कंट्री के नागरिक हैं, है ना, ये हमारी कुछ इच्छाएं हैं हमारे देश से, हमारी कुछ आशाएं हैं हमारे देश से, वो ये आइडियल्स को पूरा करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी सभी इच्छाएं हैं जो हमारी आइडियल्स हैं, उन सारे आइडियल्स को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में देख सकते हैं। इच्छा नहीं कह सकता मैं, आइडियल्स कहूँगा। तो जो भी आइडियल्स हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे मूल जो नेचर है, मतलब कि मूल का मतलब हो गया यहाँ पे फंडामेंटल, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसकी मूल प्रकृति क्या है, मतलब उसका बेसिस क्या है फॉर्मेशन का, किस बेस पर बना है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जैसे एक कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, है ना, जिनके अलग अलग विचारधारा होती हैं, है ना, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सभी जो कम्युनिटीज़ हैं किसी एक मुद्दे को लेके आपस में एग्री करें, है ना, ये कभी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें एक ऐसी कॉमन रूल बुक दे देता है जो रूल बुक हमें फॉलो करनी होती है ना। और जो रूल बुक होती है अ सेट ऑफ रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है ना। जो सभी नागरिक, हमारे नागरिक मतलब जो हमारे देश के सभी सिटीजन्स जो फॉलो करते हैं। So let's just see some facts. In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. During the Second World War, the assertion for the Independent Constitution Assembly formed only of Indian gain memorandum, and this was convened in December 1946. ठीक, between December 1946 and November 1949, the Constitution Assembly drafted a constitution for independent India. Free to shape their destiny at last after 150 years of British rule, the member of the Constituent Assembly approached this task with a great idealism that the freedom struggle had helped to produce. You will read more about the work of the Constitution Assembly later in the chapter, but now you can see the photo alongside shows the Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constitution. So let's just see the story of Constitution making. थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि कैसे Constitution making स्टार्ट हुई थी। So the story start in 1934, है ना। 1934 में जो इंडियन INC, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, है ना, उन्होंने डिमांड की कि एक संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया जाए, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, है ना, उसको मंजूरी मिली बनने की, है ना, और इसमें तेज़ी भी दिखाई गई। ठीक है, और ऐसा हो पाया 1946 तक के दिसंबर तक, है ना। तो हम एक फ़ोटो देख रहे हैं अभी जिसमें बताया गया है, जिसमें दिखाया गया है कुछ मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ठीक है, 1946 की दिसंबर और नवंबर 1949 जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, है ना, इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। मतलब इसमें बताया गया इस समय के बीच कि हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसके लिए जो हम संविधान बना रहे हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, है ना। ब्रिटिश शासन के 150 वर्ष के बाद आखिरकार हमें अपने भाग्य को आकार देने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने
इस बड़े कार्य को बड़े आशावाद के साथ किया, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष ने मदद की थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता संघर्ष ने भी जिसकी मदद की थी। आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम है, हम आगे चल के देखेंगे इसी चैप्टर में, है ना। लेकिन अभी आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, इस फोटो में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं और वो एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, ठीक है, संबोधित कर रहे हैं। एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना, तो वो संबोधित कर रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1934 से ये स्टार्ट होता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। और ये जो डिमांड थी, है ना, ये जो डिमांड थी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की, मतलब संविधान सभा को गठित करने की, ये डिमांड आके पूरी होती है 1946 दिसंबर तक, ठीक है। इसकी मैंने फ़ोटो भी दिखाई थी आपको कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ मेंबर्स थे, है ना, जो आप देख सकते हैं, है ना। और 1946 से लेके 1949 ये कुछ साल थे, है ना। इन सालों के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव थे वो उन्होंने यहाँ पर पूरे किए, यहाँ पर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के। आगे चल के उन्होंने 150 साल की जो ब्रिटिश रूल से आज़ादी हमें मिली थी, इसका पूरा क्या कहते हैं यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर, अ सिचुएशन इन नेपाल। So Nepal was a monarch. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people movement in Nepal fought for several decades to establish democracy. In 2006, they finally succeeded in putting an end to the power of the king. Now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of our country that they want Nepal to be and that they have fight for. यहाँ पर हम एक स्टोरी देख रहे हैं, हमारी सिचुएशन देख रहे हैं नेपाल की। नेपाल में क्या था, तो जो नेपाल था एक राजतंत्र था। नेपाल का पिछला संविधान जिसे 1990 में अपनाया गया था, है ना, इस तत्व को प्रतिबिंब करता है कि अंतिम अधिकार राजा के पास था। मतलब 1990 में जो पिछला संविधान बनाया गया था, है ना, उसमें हमें ये पता चलता है, मतलब कि जब हम उस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसमें साफ झलकता है कि राजा के पास डिसीजन मेकिंग का पावर था, ठीक है। नेपाल में एक जन आंदोलन में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कई दशकों तक संघर्ष किया, है ना। नेपाल ने जन आंदोलन मतलब एक प्रकार से काफ़ी फाइट की थी वहाँ के लोगों ने, है ना, काफ़ी संघर्ष, यानी कि काफ़ी उन्होंने क्या कहते हैं फाइट की थी इसके लिए, ठीक है। और 2006 में जाके राजाओं की शक्तियों को क्या कहते हैं वे समाप्त करने में सफल रहे, है ना। राजा को हटा दिया वहाँ से, है ना, और नेपाल को लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए अब लोगों को एक नया संविधान भी चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है नेपाल में नए कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अच्छा, क्या कारण था कि नेपाल में तो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना। इसका कारण यह था कि वह पिछले संविधान में उन आदर्शों को प्रतिबिंब नहीं करता था जो वो चाहते थे कि नेपाल हो, है ना, और उसके लिए उन्हें संघर्ष किया था, है ना। तो मतलब ये था यहाँ पर कि वो कुछ उनकी उम्मीदें थीं, कुछ आशाएं थी, है ना, कुछ आइडियल्स थे, है ना, जो चाहते थे कि नेपाल ऐसा हो। तो उन आदर्शों को पूरा नहीं कर पा रहा था वह संविधान, है ना, उनको दर्शा नहीं पा रहा था वह संविधान, है ना। तो जिसके लिए जिस नेपाल के लिए उन्होंने संघर्ष किया था वहाँ के लोगों ने, वो उनको नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर इनको वापस से आवश्यकता थी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखा जाए। हमने यहाँ पर देखा नेपाल की सिचुएशन में, हमने देखा कि नेपाल में कैसे क्या कहते हैं लोकतंत्र नहीं था, मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी यहाँ पर, है ना। राजतंत्र था, राजतंत्र यानी कि मोनार्च था यहाँ पर, है ना। राजा का मतलब यहाँ पर चलता था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो
कैसे 1990 का जो संविधान था, है ना, वो पूरी नहीं कर पा रहा था लोगों की आशाओं को, तो नया संविधान बनाया गया, डेमोक्रेसी रिस्टोर की गई यहाँ पर, है ना। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं कि एक एग्जाम्पल्स ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, है ना। तो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज़ bullied, his classmates are not too fond of him, है ना। तो सुरेश अपनी क्लास का मॉनिटर था, है ना, वो लोगों को, वो अपनी क्लास के बच्चों को बुली करता था, है ना, उनको दबाता था, है ना। तो हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, उसके क्लासमेट्स उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, है ना। तो यहाँ पर जो उनकी क्लास टीचर थी, जिनका नाम मिसेस राव था, है ना, उनको क्लास छोड़ के कुछ अर्जेंट वर्क से जाना पड़ा, है ना। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास एंड सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुरेश को उन्होंने जो टीचर थी क्लास टीचर थी जिनका नाम मिसेस राव था, उन्होंने सुरेश से कहा कि उसको क्लास माइंड करना है। तो सुरेश ने इस क्या कहते हैं, अनिल को उठाया, है ना, अनिल, और उससे कहा कि अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट टू यू मिसेस राव, है ना। तो उन्होंने अनिल से कहा, यानी कि जो सुरेश थे उन्होंने अनिल से कहा कि अनिल, आज मैं तुम्हारी शिकायत, है ना, हमारी क्लास टीचर मिसेस राव से करूँगा, है ना। तो ऐसे में जो अनिल था उसका ये कहना था, बट व्हाट हैव आई डन, तो मैंने क्या किया है ना। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या हुआ। व्हेन मिसेस राव रिटर्न टू द क्लास, जब मिसेस राव क्लास में वापस आई, है ना, तो जो क्लास का मॉनिटर था जिसका नाम था सुरेश, मैम, वाइल यू वर अवे अनिल kept टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी, है ना। तो उसने शिकायत की क्लास टीचर से, है ना, सुरेश ने, जो कि क्लास का मॉनिटर था, कि मैम जब आप क्लास में नहीं थी, है ना, तो जो अनिल था बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बातें नहीं सुन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास जो टीचर थी उनका रिएक्शन कुछ इस टाइप से था, अनिल, you will have to stay back after the school today and write I will not disobey the class monitor 100 times, ठीक है। तो इस प्रकार से मिसेस राव ने पनिशमेंट दिया अनिल को, और उन्होंने कहा कि आज आप स्कूल के बाद रुकेंगे और अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखेंगे कि मैं अपने क्लास के मॉनिटर को कभी डिसोबे नहीं करूँगा, मतलब उसकी हमेशा बात मानूंगा, और ये आपको 100 टाइम्स लिखना है। तो ऐसे में अनिल ने कहा कि मैम ये मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पावर डोमिनेशन, है ना। जब किसी व्यक्ति के पास कोई पावर होता है तो उस पावर का उसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। लेट मी टेल यू वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल इज अबाउट द मेजॉरिटी, है ना। इन अ क्लास देयर इज अ मेजॉरिटी of the student who wants to, or who always wants to play cricket, and there are some other student who wants to play समथिंग अनदर गेम, है ना। तो एक क्लास में मेजॉरिटी थी जिसमें ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते थे और क्रिकेट ही खेलते थे, और उसी क्लास के जो माइनॉरिटीज़ के, मतलब कुछ बहुत कम संख्या के बच्चे थे जो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, है ना, वो दूसरा गेम जैसे बास्केटबॉल खेलना चाहते थे। तो इसी बात को लेके वाद विवाद हुआ दोनों मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप में, है ना। तो ये विवाद टीचर तक पहुंचा, है ना, और टीचर ने ये डिसाइड किया क्लास के ज़्यादातर बच्चे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वही क्लास में खेला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये था कि जो डिसीज़न लिया गया यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी लिया गया, है ना, बहुमत के हिसाब से यहाँ पर डिसीज़न लिया गया। द ऑब्जेक्ट टू शो दिस एग्जाम्पल्स, लेट मी टेल यू, the Constitution usually contain rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is available in the country for its people। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स हमारे होते हैं, है ना, जिनका काम ये इंश्योर करना होता है कि माइनॉरिटीज़ को जो मिलना चाहिए, मतलब जो अधिकार सभी लोगों के लिए है वो भी माइनॉरिटीज़ को मिलना चाहिए एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, है ना। सो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, द अनदर रीज़न वाई वी डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी बाय
माइनॉरिटी। तो ये रीज़न, तो यहाँ पर हमने एक रीज़न देखा कि क्यों डोमिनेशन होता है मेजॉरिटी का माइनॉरिटी में, है ना। दिस कैन बी रेफर्स दैट, मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी और डोमिनेशन है वो यहाँ पर किस प्रकार से होता है, इसको हम समझ सकते हैं कि जो कम्युनिटी डोमिनेशन होता है, मतलब एक कम्युनिटी जो दूसरे कम्युनिटी पे क्या करती है, डोमिनेशन करती है, उसको हम इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं, है ना। जबकि एक ही मेंबर की कम्युनिटी का जब डोमिनेशन होता है ना, दूसरे पर, और दूसरा मेंबर भी सेम कम्युनिटी का होता है, तो उसको इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें हमने डोमिनेशन के बारे में बात की और हमने ये बताया कि माइनॉरिटीज़ के बारे में। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, उसको सेफगार्ड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The beginning of the 12th century, the Indian national movement had been active the struggle for independence from British rule from the several decades। तो 12वीं शताब्दी की शुरुआत में इंडिया यानी कि जो भारत था हमारा, उसका राष्ट्रीय मूवमेंट चलाया गया, यानी आंदोलन चलाया गया, है ना। और ये जो आंदोलन था ये सक्रिय था किस चीज़ के लिए, ब्रिटिशर्स के रूल को ख़त्म करने के लिए और इंडिया में स्वतंत्रता लाने के लिए। और ये जो क्या कहते हैं मूवमेंट था, ये दशकों से चल रहा था, डिकेड से चल रहा था, ठीक है ना। इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट थे, है ना, उन्होंने अपना जो ज़्यादातर जो ग्रेट डील ऑफ टाइम इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड लुक लाइक। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, उन्होंने नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा, उन्होंने अपने समय को यूज़ किया और उन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया, इमेजिन किया और इन्होंने प्लानिंग की कि जो फ्री इंडिया है वो कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स एंड दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। जब ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है, तो सभी इंडियंस को वो चीज़ें फॉलो करनी होती थी जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए थे, ठीक है, और उनको चेंज करने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। कंटिन्यू। देयर वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। Each of the provision of the future constitution was discussed in great detail, and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through concessions. The above photo shows Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent member of the Constitution Assembly। ठीक है, तो जो हमारी संवैधानिक सभा थी, इस संवैधानिक सभा के जो मेंबर्स थे उनके बीच में बहुत यूनिटी यानी एकता की भावना थी, है ना। जो भी प्रोविजंस थे यहाँ पे, जो भी प्रावधान यानी कि जो भी हमारे रूल्स और रेगुलेशन थे, जो भी इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किए थे और बनाए थे, उन सब के बीच में आपस में जो थी इन लोगों मतलब इन्होंने बहुत डिटेल में उन सब का डिस्कशन किया और बहुत सिंसियर एफर्ट के बाद उन्होंने आम सहमति से, है ना, उन सारे प्रोविजंस को, लॉ को बनाया। जहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, प्रोविजन मतलब बताया था मैंने आपको, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो बहुत डिस्कशन के साथ, डिटेल डिस्कशन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने मेंबर थे उनकी आपसी सहमति के बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं, ठीक है। और एक फ़ोटो देख सकते हैं आप, है ना, देयर इज़ अ फोटो, है ना, यू कैन सी दैट, है ना। Prominent member of the Constitution Assembly, that is Sardar Vallabhbhai Patel, you can see in the photo। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, है ना, फेमस। तो एक फेमस जो मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अगला है यहाँ पर आगे मैं बताना चाहूँगा इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन in the Constituent Assembly help the scheduled caste and get some safeguard in the draft constitution. But he also stated that although the law might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these law were in the hand of Hindu caste officers, है ना। So he therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services।
यहाँ पर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या कहते हैं विषय में बताने वाले हैं और उनका क्या बिलीफ था यहाँ पर। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है इन्हें, है ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि संविधान सभा में उनकी भागीदारी से कास्ट के संबंध में कुछ उपाय करने में मदद मिलेगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि हालांकि कानून मौजूद हो सकते हैं लेकिन अनुसूचित जनजातियों के आसपास, लेकिन उनको अभी भी डर है। और उनके डर का कारण ये है कि जो कानून और जो प्रशासन है वहाँ पर अभी भी जाति हिंदू अधिकारी हैं, है ना। और जो कानून प्रशासन है वो उस समय भी जाति हिंदू अधिकारियों के हाथ में है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों को सरकार के साथ साथ सिविल सेवाओं में शामिल होने का आग्रह भी किया, ठीक है। तो उनका मानना था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या जो शेड्यूल ट्राइब्ड हैं, है ना, उनको भी गवर्नमेंट ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो हिंदू कास्ट ऑफिसर्स हैं, है ना, उनकी जगह कुछ शेड्यूल कास्ट ऑफिसर्स भी आ पाए, है ना। तो ये कुछ विचार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के